So last class we have seen one of the feature that is default method. Default method hota kya hai? So it is a Javaite feature as we know that, and it is written the method written inside the interface, not in. और ये मेथड कैसे लिखा होता है इंटरफेस पर विद द डिफॉल्ट कीवर्ड, ये डिफॉल्ट कीवर्ड, and we write the method body also. Write the method body also. Now, if a method is made default, then it is not mandatory for write the method. Were introduced to achieve backward compatibility. Now, as we know that if any concrete class implements it is compulsory for that particular class to override the back method. And if any new method is introduced inside the interface, then all the subclasses break. And to avoid this break, make the method as default. Then we also talked about how to resolve ambiguity problem. How to resolve this ambiguity problem for the default method. Now, if one concrete class is implementing more than one interfaces and the parent interface has the same default method, then it will be a confusion for the child. It will be a confusion for the child class. To avoid this confusion, child class has to override the common that default method, and from that particular method we can call the either interface 1 or interface 2 method. This is the syntax. How do we call the method? Now, static method is also a feature of Java 8 and we access them using class name, that is the interface name. After that we started with the topic called as file handling. तो फाइल हैंडलिंग ये टॉपिक हमने स्टार्ट किया था, यहाँ पर हमने देखा था कि व्हाई डू वी नीड फाइल. फाइल का यूज़ होता है, फाइल इज नथिंग बट परमानेंट स्टोरेज का यूज़ करके हम कुछ डेटा परमानेंटली स्टोर कर सकते हैं. एंड फाइल्स विल बी पार्ट ऑफ फोल्डर. यूजिंग फाइल हैंडलिंग टॉपिक वी कैन डू ऑल ऑफ दीज जावा प्रोग्राम. क्या क्या कर सकते हैं, नया फाइल क्रिएट करना, डिलीट नेम करना, उसकी परमिशन सेट करना, गेट करना, मैनिपुलेट करना, क्रिएट, डिलीट. तो यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात है कि जावा क्या करता है, जावा मेंटेन्स अ फाइल क्लास ऑब्जेक्ट फॉर एवरी फाइल और अ फोल्डर. तब अगर आपको कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है फाइल के साथ या फोल्डर के साथ, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए आपको एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ता है. कौन से क्लास का? फाइल क्लास का. Now there are a lot of classes provided by Java to perform manipulations. Now file class is a concrete class present inside the java.io package, and using file class we can do क्या कर सकते हैं, क्रिएट, डिलीट, रीनेम अ फाइल, क्रिएट, डिलीट, रीनेम अ फोल्डर. ये भी हमने करके दिखा था. सेट गेट द परमिशंस फॉर अ फाइल, गेट द फाइल लेंथ, गेट द फाइल पाथ एंड लिस्टिंग ऑफ फाइल. सारी चीज़ें हम कर सकते हैं. तो फाइल क्लास ऑब्जेक्ट क्रिएशन डज नॉट मीन फाइल क्रिएट. ध्यान देना कि फाइल क्लास ऑब्जेक्ट क्रिएट क्या है, मतलब हमने फाइल नहीं, फाइल क्रिएट करने के लिए आपके पास मेथड मेथड है वो क्रिएट न्यू फाइल. क्रिएट न्यू फाइल इज. तो फाइल, ये फाइल है आपका फिजिकल फाइल है और उसको क्या करना है, जावा एप्लीकेशन. तो आप उस फाइल को क्रिएट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, रीनेम कर सकते हो, इस फाइल में से डेटा रीड कर सकते हो, डेटा राइट कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें. तो फाइल को रीड राइट करना छोड़ के बाकी सारी ऑपरेशंस आप फाइल क्लास का यूज करके कर सकते हो. दैट इज व्हाट वी हैव सीन. आई विल कंटिन्यू विद द फाइल हैंडलिंग टुडे आल्सो. Now we are using file class. So what all things we can do using file class? Create new file, rename existing file, delete existing file. और क्या था? Create new folder, rename folder, delete folder, then get or set the permissions for the file, get the file length. फाइल का लेंथ आप गेट कर सकते हो.
गेट द फाइल पाथ, गेट द फाइल पाथ। और क्या कर सकते हो आप, लिस्ट द फाइल्स द गिवन फोल्डर। राइट, ये सारी चीजें हम करने वाले हैं। तो लेट्स गो हेड एंड दिस। तो बल्क फाइल कैसे क्रिएट करते हैं ये भी हमने देखा था कल, हमने बहुत सारी फाइल्स क्रिएट करके देखा। So we have created almost 1000 files with the name starting like this and .txt extension. तो हमने लूप में एक हर फाइल क्रिएट किया था and it was working. Now what we will do today, I want to do something, file listing. File listing मतलब अब मुझे पता करना है कि लेट से ये एक फोल्डर है मेरा एरे, इसके अंदर जो भी फाइल्स है इस फोल्डर के अंदर, इसका मुझे नाम प्रिंट क्या करना है मुझे। तो देर इज अ फोल्डर कॉल्ड एज एरे और पैकेज, उस पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर जो भी फाइल्स है तो उसको मुझे लिस्ट करके प्रिंट करना सारे नाम। फाइल, न्यू फाइल। अब ये फाइल नहीं रहेगा, दिस विल बी अ फोल्डर। क्या रहेगा, एक फोल्डर। उस फोल्डर के अंदर जो भी कौन सा फोल्डर है उसका नाम, यू कैन गेट द फोल्डर। आप कॉपी पाथ कर सकते, कॉपी एब्सोल्यूट पाथ, आई एम कॉपिंग द एंटायर एब्सोल्यूट पाथ। अब ये देखो पूरा पैकेज का नाम है, इस पैकेज के अंदर जो भी फोल्डर के अंदर, तो उसका नाम मुझे पता करना। व्हाट आई वांट टू डू, so this folder is already there, you do not need to folder dot list। अब यहाँ पर देखो लिस्ट, यहाँ पर आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस है, लिस्ट 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 बहुत। अभी मुझे क्या करना है, सारी फाइल की लिस्ट चाहिए। क्या चाहिए, अभी लिस्ट मेथड क्या करता है आपको, लिस्ट ऑफ फाइल नेम, लिस्ट ऑफ फाइल नेम्स, लिस्ट ऑफ ऑल फाइल का लिस्ट है ये। इस फोल्डर के अंदर जो भी सारी फाइल है, देयर इज नो फिल्टरेशन, ऑल द फाइल नेम नाउ इनसाइड दिस पर्टिकुलर। अब यहाँ पर मैं फॉर ईच यूज करूंगा और मैं इस पर्टिकुलर एक एक फाइल नेम को प्रिंट करूंगा। तो फाइल नेम आई विल जस्ट प्रिंट द, लेट्स रन दिस। तो इस पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर जो भी फाइल है सबका लिस्ट नाम, जो भी फाइल का नाम है उन सारे फाइल के नाम का एक लिस्ट है मेरे पास, और उस लिस्ट को मैं वन बाय वन अभी प्रिंट कर रहा हूँ। ठीक है, ये सारे कहाँ से हैं, फाइल के नाम, ये सारे फाइल के नाम है। ये क्या है, फाइल के नाम सारे हैं। राइट, क्लियर है कैसे करना है लिस्ट ऑफ फाइल नेम्स। पहले मैंने रेफरेंस लिया उस फोल्डर का और फोल्डर डॉट लिस्ट किया और उसके अंदर मुझे सारी लिस्ट ऑफ फाइल नेम्स मिल गई। देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन नाउ, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन, ऑल फाइल नेम्स वी हैव रिसीव्ड। अब मुझे यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन भी लगाना हो सकता है, फिल्टरेशन। फिल्टरेशन क्या लगा सकते हो आप, कि मुझे फाइल जिसका फाइल का नाम एंड होता है, लेट से आप देखोगे यहाँ पर आपने जो फाइल यहाँ पर जो फाइल्स है, मुझे चेक करना है कि जिसका भी नाम डेमो वन से स्टार्ट होता है वो सारी फाइल का नाम मुझे चाहिए। क्या बोल रहा हूँ मैं, यहाँ पर तो सब कुछ है, मुझे क्या चाहिए, जो भी फाइल्स जिनका नाम डेमो वन से स्टार्ट होता है वो सारी फाइल की लिस्ट चाहिए। कैसे करोगे आप, तो फाइल फोल्डर डॉट लिस्ट तो आपको सब कुछ दे देगा, इट विल गिव यू ऑल द लिस्ट। मुझे सारा नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, फिल्टर। तो अभी यहाँ पर आप एक इनपुट दे सकते हो लिस्ट को। इनपुट क्या दे सकते हो आप, इनपुट होगा एक प्रिडिकेट टाइप। क्या होगा इनपुट, प्रिडिकेट टाइप। प्रिडिकेट क्या बोल रहा हूँ, देखो यहाँ पर फाइल नेम फिल्टर। अब मुझे क्या करना है, फाइल नेम फिल्टर क्या है एक, व्हाट इज फाइल नेम फिल्टर, फंक्शनल इंटरफेस। कौन सा इंटरफेस है, फंक्शनल इंटरफेस। तो उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे देख सकते हो, ये रिटर्न करेगा बूलियन ट्रू और फॉल्स। अभी ये एक्सेप्ट क्या करेगा, फोल्डर का नाम और फाइल का नाम, दो इनपुट रहेगा इसके।
फोल्डर का नाम और फाइल का, ये लैम्बडा रहा आपका। और यहाँ पर मुझे लिखना है कि जो भी फाइल नेम है, नेम डॉट स्टार्ट्स विद, तो एक फोल्डर का नाम मिला और दूसरा मुझे क्या है, नाम। तो इफ इट इज स्टार्टिंग विद डेमो 1 तो रिटर्न करेगा ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। अब ये लिस्ट ऑफ फाइल नेम फिल्टर्स मैंने किसको दे दिया, लिस्ट को। ये लैम्बडा मैंने किसको दे दिया, अभी लिस्ट पर्टिकुलर मेथड को। अभी इससे होगा क्या कि अभी आपने रिस्ट्रिक्शन लगा दिया। व्हाट रिस्ट्रिक्शन यू पुट, कि आई वांट ओनली फाइल्स, लिस्ट ऑफ फाइल नेम्स हुज नेम स्टार्ट्स विथ, दैट्स इट। नया चेंज मैंने ऐड कर दिया। क्या नया चेंज है, तो जावा 8 फीचर लैम्बडा मैंने इसको बोल दिया। देखो यहाँ पर सबका नाम कैसे है, डेमोन से स्टार्ट हो रहा है। यस, सिंपल। फाइल ऑब्जेक्ट लिस्ट, नाउ व्हाट आई वांट, आई डू नॉट वांट ओनली नेम्स। क्या चाहिए मुझे, बस नाम नहीं चाहिए फाइल के, मुझे फाइल का नाम पता होना है, का लेंथ कितना है, एक्सटेंशन क्या है, उस साइज की, फोल्डर का लोकेशन, एवरीथिंग आई वांट ऑल द डिटेल्स अबाउट ऑल द फाइल्स विच आर देयर इन दिस। इस फोल्डर के अंदर जो भी फाइल है सबके बारे में मुझे डिटेल चाहिए। तो आई एम गोइंग टू गेट दैट फोल्डर डॉट लिस्ट। यहाँ पर देखो लिस्ट फाइल्स, ये आपको देगा सारी फाइल्स में मिलेगा आपको। उस फोल्डर के अंदर हर एक फाइल के लिए उसने करस्पॉन्डिंग ऑब्जेक्ट बना दिया। सो अगर उस पर्टिकुलर फोल्डर में 10 फाइल है, 10 फाइल के लिए 10 ऑब्जेक्ट बने, और ये सारे के सारे ऑब्जेक्ट आपने कहाँ पर स्टोर करे, एरे ऑफ फाइल। नाउ लेट मी प्रिंट दिस। तो मुझे क्या मिलेगा, एक एक फाइल मिलेगा फ्रॉम दिस फाइल्स। लूप क्या करेंगे, हम एक एक फाइल लेंगे और उसको करेंगे। यहाँ पर देखो फाइल डॉट, आप गेट नेम ले सकते हो, उसका नाम, उसका साइज प्रिंट करना तो आप साइज प्रिंट कर सकते हो, फाइल डॉट लेंथ, और आप उसका पाथ सेट, आप पाथ भी बोल सकते हो, वेर इज द पाथ, फाइल डॉट गेट एब्सोल्यूट पाथ। तो अभी मैंने यहाँ पर बहुत सारे और भी बहुत सारे डिटेल्स आप गेट कर सकते हो। यहाँ पर मैं हर एक फाइल का, उस फोल्डर के अंदर हर एक फाइल का नाम, उसका लेंथ और उसका पाथ, देखो फाइल का नाम, कितने कैरेक्टर्स है और उसका पाथ, सिंपल। अब इसी को और नेक्स्ट लेवल तक जाके लेके जा सकते हैं इसको। क्या लेके जाके सकते हैं उसको, अब मुझे क्या चाहिए, I do not want all the files. I want file filter. The file filter, what it is? File filter फंक्शनल इंटरफेस, और इसका आप इनपुट ऐसे आप दे सकते हो, एक्सेप्ट मेथड का नाम है, फाइल एक्सेप्ट करेगा, क्या रहेगा फाइल का, आई विल जस्ट सिंपली सेट नेम, और मुझे चाहिए रिटर्न क्या करना है, बूलियन ट्रू और फॉल्स। तो नेम डॉट जो भी फाइल है, फाइल का जो भी फाइल है, दिस इज एक्चुअली अ फाइल, फाइल डॉट, अब मुझे क्या करना है, इसके अंदर बहुत सारे मेथड्स फाइल के, मुझे क्या करना है, अभी मैंने क्या लिखा है, लेट मी टेल यू। अब मैंने यहाँ पर एक सिंपल सा लॉजिक लिखा है कि मुझे ऐसी सारी फाइल्स दो जिनकी लेंथ 10 से कम है। क्या लॉजिक लिखा मैंने यहाँ पर, आई वॉन्ट ऑल द फाइल्स फ्रॉम दिस पर्टिकुलर फोल्डर whose length is less than 10 characters. So I don't think there is any file which is that small. हो सकती एक भी फाइल नहीं हो। We change that to let's say 50,
50 से ज़्यादा ही होगी, चाहे 100 होगी। एक भी फाइल देखते हैं। 100 फाइल है। इसमें देखो कुछ फाइल है 345, 400, 300 लिखता है, राइट, 300। और नंबर ऑफ फाइल्स भी। अभी जो भी फाइल का लेंथ देखो आप, ये फाइल फिल्टर। नाउ अगर आपको कोई इनपुट देता है कि मुझे इस पर्टिकुलर फोल्डर में जो भी सारी फाइल्स है, यू वांट टू फाइंड आउट हाउ मेनी फाइल्स आर देयर हुज एक्सटेंशन इज डॉट जावा, हाउ मेनी फाइल्स आर देयर हुज एक्सटेंशन डॉट टीएक्स। अब ये सब कुछ फाइंड कर, कैन फाइंड ऑल ऑफ दिस। तो एक कोई फोल्डर लेता हूँ मैं, आई विल लेट मी चेक। तो भी फोल्डर डाउनलोड बहुत सारी है आपकी, यहाँ पर तो बहुत फाइल्स भी। अब ये डाउनलोड्स का मैं एक बार ट्राई करता हूँ। स्पेसिफाई द लोकेशन, डाउनलोड इक्वल यूजर्स डाउनलोड्स। अब इस पर्टिकुलर इसमें जिनका भी नाम डॉट पीडीएफ है वो सारी फाइल्स मुझे चाहिए, या डॉट ईएक्सी चाहिए। क्या बोल रहा हूँ मैं, सॉफ्टवेयर के अंदर बहुत सारी फाइल्स होगी। व्हाट आई वांट अंडर डाउनलोड्स फोल्डर, आई वांट ऑल द फाइल्स हुज एक्सटेंशन इज डॉट पीडीएफ। क्या चाहिए मुझे, इस अभी यहाँ पर 10 लाख फाइल हो सकती है, 1 लाख, कुछ भी हो सकता है। मुझे क्या चाहिए, फाइल डॉट नेम गेट नेम इंड्स विथ, क्या चाहिए, इंड्स विथ डॉट। मैंने फिल्टर लगाया कि मुझे इस पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर जो भी फाइल्स है जिसका देखो यहाँ पर 2 फाइल है, there are 2 files. Now I want all the files whose extension .exe, वहाँ पर एक ही फाइल होगी आई थिंक, तो एक भी फाइल क्लियर है। सिंपल, दिस इज ऑल अबाउट क्रिएटिंग योर फाइल ओनली। अभी तक हमने फाइल के अंदर रीड राइट ऑपरेशन नहीं, तक हमने ये सब कुछ क्या देखा है अभी तक, फाइल के ऊपर ऑपरेशन, फाइल या फोल्डर के ऊपर। अभी तक हमने फाइल के अंदर रीड या राइट ऑपरेशन, फाइल के अंदर राइट नहीं, फाइल से कुछ रीड भी नहीं। तो अभी तक देखा है हमने फाइल लिखना। हम ट्राई करेंगे, वी विल ट्राई टू रीड और राइट कंटेंट फ्रॉम द फाइल। उससे पहले वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड देयर इज वन कॉन्सेप्ट कॉल्ड एज स्ट्रीम। व्हाट इज स्ट्रीम, व्हाट इज स्ट्रीम? इट इज ए लॉजिकल कनेक्शन, is a logical connection between source and destination.
यहाँ पर सोर्स क्या हो सकता है, फाइल हो सकता है, या सोर्स कैन बी योर जावा एप्लीकेशन, or it can be destination also. It is a logical connection between source and destination in order to transfer the data transfer के लिए आप बोल सकते हो it is kind of a channel, it is kind of a logical connection or a channel medium between source and destination to transfer. Now you can think of stream is, let's say मेरा कोई फाइल है, now some file Java application. अब मुझे क्या करना है, इस फाइल से कुछ डेटा रीड करना है, डेटा टू बी रीड फ्रॉम दिस. So who is source here? Source and your, so you are reading the content from this file into your file, and this is your kind of a logical connection between these read. Yeah. अब मुझे सिमिलरली अभी यहाँ पर आप रीड कर रहे हो फाइल में से, क्या कर रहे हो आप, फाइल में से रीड कर रहे हो. नाउ इफ आई वांट टू राइट बैक टू फाइल, अभी मुझे फाइल में कुछ राइट करना है, आई वांट टू राइट समथिंग बैक टू द फाइल. तो अभी यहाँ पर ये क्या हो रहा है, अभी आप इनपुट ले रहे हो जावा एप्लीकेशन, दिस इज काइंड ऑफ अ इनपुट and this is something output. This is kind of a read operation, or this is kind of a write operation. We have two types of streams here. One is input stream and another one is output stream. One is used to read the content, another one is to write the content. We have two different. यहाँ तक क्लियर है? It is just a logical. अभी आप फोन कर रहे हो किसी को, is there any connection visible? There is a connection, yes. Similarly, there is also connection between these two file and your. अभी you can think of stream is kind of a pipe. तो आप समझोगे एक पाइप है, का यूज है डेटा ट्रांसफर, सिंपल है. अभी हमारे घर में पानी आने के लिए एक पाइप है, गैस के लिए अलग से पाइप है, so we call it as water pipe, another one is gas pipe. So based on the content we have different types of pipes. If it is carrying water, it is called as water pipe. If it is carrying gas, it is called as gas. So based on the what type of content we have two types of streams in Java also. So what are the two types of streams? Types of streams based on the content of the stream. So based on the content of the stream, we have two types of stream based on the content of that particular stream. So there are two streams. अभी स्ट्रीम का काम क्या है, डेटा ट्रांसफर करना. क्या काम है, डेटा ट्रांसफर. और डेटा हमारे पास दो टाइप का है, डेटा हमारे पास दो टाइप का, एक टेक्स्ट हो सकता है या कैरेक्टर बेस. क्या हो सकता है, कैरेक्टर, और दूसरा होता है बाइट. बाइट मतलब आपका फोटोज हो गया, इमेजेस हो गया, वीडियो हो गया, ऑडियो हो गया, मतलब टेक्स्ट छोड़ के सब कुछ दूसरा. ये क्या हुआ, बाइट ओरिएंटेड. तो हमारे पास दो टाइप की स्ट्रीम्स है, एक कैरेक्टर ओरिएंटेड स्ट्रीम है और दूसरी बाइट ओरिएंटेड. कैरेक्टर ओरिएंटेड स्ट्रीम और बाइट ओरिएंटेड, कैरेक्टर ओरिएंटेड स्ट्रीम और दूसरा है बाइट ओरिएंटेड स्ट्रीम. अभी कैरेक्टर ओरिएंटेड स्ट्रीम का मतलब क्या होता है, एक ऐसा स्ट्रीम जिसमें क्या फ्लो होता होगा, कैरेक्टर. स्ट्रीम विच कैरीज ओनली कैरेक्टर. बाइट ओरिएंटेड स्ट्रीम्स मतलब स्ट्रीम विच कैरीज बाइट्स. बाइट्स मतलब 0 समझ लो. के अंदर आप इमेजेस हो सकता है या फोटोज हो सकता है, एनीथिंग इट कैन बी, या वीडियोस हो सकते हैं, राइट. तो कैरेक्टर ओरिएंटेड स्ट्रीम एंड बाइट ओरिएंटेड स्ट्रीम्स. नाउ so these streams carry character data. These streams carry
these streams will carry character data and other will carry bytes. क्लियर है? अभी घर में हमारे पास दो पाइप है वाटर के, वन इज इनलेट एंड वन इज आउटलेट। एक पानी आता है और दूसरा बाहर जाता है, या दोनों एक ही पाइप यूज करते हैं? अलग अलग पाइप है, राइट? दो अलग अलग क्यों है? फॉर डिफरेंट रीजंस। तो इनपुट के लिए अलग पाइप होता है हमारे पास और आउटपुट के लिए अलग होता है। तो वी हैव वन इज फॉर इनलेट एंड वन इज फॉर, तो वैसे ही हमारे पास दो टाइप ऑफ स्ट्रीम्स होते हैं बेस्ड ऑन द कंटेंट, कैरेक्टर ओरिएंटेड स्ट्रीम्स और बाइट ओरिएंटेड। अभी ध्यान देना, बाइट ओरिएंटेड स्ट्रीम्स कौन से? बाइट ओरिएंटेड स्ट्रीम्स आर आल्सो ऑफ टू टाइप्स। एक हो सकता है इनपुट के लिए इनपुट स्ट्रीम, और दूसरा होता है आउटपुट स्ट्रीम। Input stream and output stream. One is input stream, other one is output stream. Similarly, we'll have character oriented stream, और वहां पर दो रहेंगे, लेकिन वहां पर उन्होंने ऑलरेडी नेम अलग ले दिया। What are these? Reader and writer. What are the names? Reader and यहाँ पर now input stream. What is input stream actually? It is an abstract class. Output stream. What is output stream? It is also abstract class. It is an reader. It is also that class. Writer. It is also. Streams are represented using. यहाँ तक clear है? Byte oriented streams we have two types: input stream and output stream. Character oriented streams we have reader and. Now input stream is extended by. Input stream is extended by file input stream. File input stream. Then we have buffered input. Now object input. Similarly, file output stream is extended by file output. Output stream is also extended by buffered output. बहुत सिंपल है, ऑब्जेक्ट आउटपुट। reader is extended by file reader, buffered. Writer is extended by file writer, buffered. Let's see this all of these classes. So we have one set of things. Byte oriented stream. There are two types: input stream, output stream. Now file input stream is by similarly we have character oriented stream. It has two types: reader and writer. Now these three classes are all of these six classes, these three and these three, as well as these classes are concrete. अब इन classes का object create कर सकते। Now byte oriented streams
यहाँ पर देखो ध्यान दो, इनपुट स्ट्रीम एंड आउटपुट स्ट्रीम, दीज आर ऑब्स्ट्रैक्ट क्लासेस, इनका ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते। These classes are extended by file input stream, buffer input stream, object input stream, file output stream, buffer output stream, object output stream। अभी आपको कितने सारे क्लासेस पढ़ना है? 3 3 6 और ये 10, कितने क्लासेस है? 10 क्लास। अभी अभी ये 10 क्लासेस का यूज क्या है? सिंपल, फाइल में रीड करना है, रीडिंग पर्पस, फाइल में से कुछ रीड करना है, तो मेरे पास 5 क्लासेस है। फाइल इनपुट स्ट्रीम, बफर इनपुट स्ट्रीम, आउटपुट स्ट्रीम, फाइल रीडर, बफर रीडर। फाइल में राइट करना है, फाइल आउटपुट स्ट्रीम, बफर आउटपुट स्ट्रीम, ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम, फाइल राइटर, बफर राइट। This is what is the reason we have read, this write, this is also read and also। भी आप पूछोगे इतने सारे क्यों दिए क्लासेस? क्वेश्चन, ऑब्वियसली क्वेश्चन आएगा, राइट? अभी इसको सिंपल भाषा में समझाता हूँ। अभी मुझे बताओ, मुझे एक फाइल है और एक मेरा जावा एप्लीकेशन है, इन दोनों में कुछ ना कुछ कनेक्शन लॉजिकल टू रीड और राइट। अभी लेट से मुझे कुछ रीड करना है फाइल में से, क्या रीड करना है? दो ऑप्शन आप, एक तो कैरेक्टर डेटा हो सकता है और नॉन कैरेक्टर बोल रहा हूँ मैं, तो कैरेक्टर डेटा हो सकता है और दूसरा नॉन कैरेक्टर। तो आई वॉन्ट टू रीड फ्रॉम द फाइल, आई वॉन्ट टू रीड फ्रॉम द फाइल बट इन टर्म्स ऑफ कैरेक्टर्स। इसमें कैरेक्टर रीड करना है, तो मेरे पास कौन सा? फाइल रीडर। क्या? फाइल रीडर और बफर्ड रीडर, कैरेक्टर ओरिएंटेड हमारे पास। देखो यहाँ पर, तो यहाँ पर देखो, इसको थोड़ा समझो फिर से एक बार, इसको समझते थोड़ा। तो आई वॉन्ट टू रीड फ्रॉम अ फाइल इन टर्म्स ऑफ बाइट्स। व्हाट इज द क्लास? मुझे एक फाइल में से डेटा रीड करना है, बट दैट डेटा इज ऑफ बाइट, तब नॉन कैरेक्टर डेटा है। नॉन कैरेक्टर डेटा रीड राइट के लिए ये सारा ऑपरेशन आपके पास, बाइट ओरिएंटेड। ये पाइप के टाइप समझो आप, एक रीडिंग के लिए और दूसरा राइटिंग के लिए। अभी रीडिंग के लिए कौन सा है आपके पास? रीड क्या करना है आपको? बाइट। क्या रीड करना है? बाइट। बाइट रीड करना है कहाँ से? फाइल में से। क्या है आपके पास? कौन सा क्लास है? फाइल इनपुट स्ट्रीम। अब ये इनपुट स्ट्रीम तो हाई लेवल हो गया, लेकिन उसका स्पेशलाइजेशन क्या है? फाइल इनपुट स्ट्रीम, बफर इनपुट स्ट्रीम, ऑब्जेक्ट इनपुट स्ट्रीम। अब मुझे फाइल में से डेटा रीड करना है, कौन सा डेटा रीड करना है? बाइट्स। मेरे पास क्या ऑप्शन है? फाइल इनपुट स्ट्रीम। अब मुझे फाइल में डेटा राइट करना है, फाइल में डेटा राइट करना है, बट कौन सा डेटा राइट करना है? राइट्स। तो मैं यूज करूंगा फाइल आउटपुट। आई वांट टू राइट टू अ फाइल इन टर्म्स ऑफ बाइट्स, तो मैं यूज करूंगा फाइल आउटपुट से। आई वांट टू रीड फ्रॉम अ फाइल इन टर्म्स ऑफ कैरेक्टर, तो मेरे पास है फाइल रीडर। आई वांट टू राइट टू अ फाइल इन टर्म्स ऑफ कैरेक्टर, तो आई हैव फाइल राइटर। चार क्लासेस अभी के लिए मैं आपको सामने दे रहा हूँ। फाइल इनपुट स्ट्रीम, फाइल इनपुट स्ट्रीम, फाइल आउटपुट स्ट्रीम, फाइल आउटपुट स्ट्रीम, फाइल रीडर, फाइल क्लासेस। सब कुछ किसके बारे में बात करिए? पहला वर्ड क्या है? फाइल। इसके बारे में बात करिए, फाइल। फाइल इनपुट स्ट्रीम, फाइल आउटपुट स्ट्रीम, फाइल रीडर, फाइल राइटर। सब कुछ किसके बारे में हो रहा है? फाइल। अभी फाइल में आपके पास दो टाइप कर सकते हो आप, क्या कर सकते हैं? रीड ऑपरेशन या राइट ऑपरेशन। अभी रीड करने के लिए मेरे पास फाइल कोई है, उसमें आप क्या कर सकते हो? एक तो रीड कर सकते हो या राइट। अभी रीड करने के लिए आपके पास कौन सा डेटा हो सकता है? एक तो आपके पास कैरेक्टर हो सकता है या बाइट हो सकता है। राइट करने के लिए भी एक तो कैरेक्टर हो सकता है या बाइट हो सकता है। क्या करना है मेरे को? फाइल में से रीड करना है। क्या रीड करना है? कैरेक्टर। फाइल में से रीड करना है, क्या रीड करना है? बाइट्स। फाइल में राइट करना है, एक तो कैरेक्टर हो सकता है या बाइट हो सकता है।
So can you tell me without looking into this, I want to read from a file. क्या read करना है आपको? Character. क्या read करना है? I want to read characters from the file. What is the class? File reader. Read. File reader. I want to read the content from the file. But read क्या करने वाले हो? Bytes. फाइल में से क्या रीड करना है? बाइट्स. क्या फाइल का नाम क्या होगा? फाइल इनपुट स्ट्रीम. फाइल रीडर एंड फाइल इनपुट स्ट्रीम. तो फाइल इनपुट स्ट्रीम क्या करेगा? इट विल हेल्प यू रीड द बाइट्स फ्रॉम द गिवन. फाइल रीडर विल हेल्प यू रीड द कैरेक्टर्स फ्रॉम द फाइल. अब मुझे क्या करना है? राइट करना है फाइल में. क्या करना है? राइट करना है. आई वॉन्ट टू राइट टू अ फाइल. आई वॉन्ट टू राइट टू अ फाइल. बट क्या राइट करना है आपको? कैरेक्टर. कौन सा क्लास होगा? फाइल राइटर. परफेक्ट. फाइल में मुझे राइट करना है, लेकिन क्या राइट करना है आपको? बाइट्स. कौन सा क्लास है? फाइल आउटपुट. क्लियर है क्लासेस? क्या क्या क्लासेस है? फाइल रीडर, फाइल इनपुट स्ट्रीम, फाइल राइटर, फाइल आउटपुट. एक फाइल है, उसमें से आप एक तो रीड करोगे, एक तो राइट करोगे. रीड क्या करोगे? एक तो कैरेक्टर रीड करोगे या बाइट रीड करोगे. तो कैरेक्टर रीड करना है तो फाइल रीडर. बाइट्स रीड करना है तो फाइल इनपुट स्ट्रीम. फाइल में राइट करना है, कैरेक्टर राइट करना है तो फाइल राइटर. फाइल में राइट करना है बाइट्स तो कौन सा क्लास है? फाइल आउटपुट. कंफ्यूजन है कोई? दो ही ऑप्शन है, रीड, राइट. रीड करने के लिए दो क्लासेस है, एक तो फाइल रीडर है और दूसरा फाइल इनपुट स्ट्रीम है. राइट करने के लिए एक तो फाइल राइटर है या दूसरा फाइल आउटपुट. सिंपल. चार क्लासेस है. अभी इसके अलावा और चार क्लासेस दिए, पता है? और चार क्लासेस है. कौन कौन से? बफर्ड इनपुट स्ट्रीम, बफर्ड आउटपुट स्ट्रीम, बफर्ड रीडर एंड बफर्ड राइटर. अभी ये बफर क्या होता है? विल टॉक अबाउट दैट. अभी आप डायरेक्ट फाइल से, नाउ लेट मी एक्सप्लेन दिस आल्सो. मेरे पास एक फाइल है. मेरे पास एक फाइल है. अब फाइल में से मुझे डेटा रीड करना है. क्या करना है? फाइल में से डेटा रीड करना है इन जावा एप्लीकेशन. ये मेरा जावा एप्लीकेशन है. रीड करो या राइट करो. अभी फाइल में से आप हर एक कैरेक्टर या बाइट रीड करो तो आपको यहाँ पर एक चेक होता है. क्या बोल रहा हूँ? यहाँ पर अगर आप रीड या राइट कर रहे हो, अगर मुझे इस फाइल में से 10,000 कैरेक्टर राइट करना या रीड करना है, क्या करना है? मुझे 10,000 कैरेक्टर हो या 10,000 बाइट्स हो, रीड करना हो, राइट करना हो, तो हर एक टाइम, एवरी टाइम जब भी आप फाइल को टच करते हो, वेन एवर यू आर ट्राइंग टू टच द फाइल फ्रॉम जावा एप्लीकेशन, मतलब जावा एप्लीकेशन अगर फाइल को एक्सेस करने का ट्राई करता है तो रीड और राइट, एक कैरेक्टर राइट करना है या एक बाइट राइट करना है या एक कैरेक्टर रीड करना है या कैरेक्टर राइट करना है या बाइट राइट करना है, जो भी ऑपरेशन हो, हर एक कैरेक्टर हर एक बाइट के लिए वो क्या करेगा? फाइल की परमिशन चेक होगी. क्या होगी? परमिशन चेक. परमिशन चेक मतलब इस फाइल को हम रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं. डू यू हैव द नेसेसरी परमिशंस? व्हाट इज द लोकेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर फाइल? एवरीथिंग इज चेक्ड. एग्जाम्पल, अभी आप मॉल में जा रहे हो और दिन में आप 1000 बार चक्कर मार रहे हो और 1000 बार वो सिक्योरिटी गार्ड आपको चेक कर रहा है. क्या होगा? टाइम वेस्ट होगा कि नहीं? आपका काम क्या है? एक गाड़ी उधर खड़ा, वहां से कुछ बक्से उठाना है और मॉल के अंदर रखना है, लेकिन हर टाइम वो क्या कर रहा है? आपको चेक कर रहा है, जाते टाइम भी और आते टाइम भी. क्या होगा? क्या टाइम वेस्ट जाएगा? बहुत टाइम वेस्ट जाएगी कि नहीं? मतलब एक दूसरे लोकेशन पर जाके बक्से रखना है, उधर बॉक्सेस रखना है, लेकिन हर एक बॉक्स के लिए वो आपको पूछ रहा है कि परमिशन. आप ही चेकिंग, डू यू हैव द परमिशन, डू यू हैव द परमिशन, आईडी कार्ड, एवरीथिंग. हर एक बॉक्स के लिए. और ऐसे 1000 बॉक्स है, लेट्स से 10,000 बॉक्स है, हर टाइम वो चेक करेगा तो कितना टाइम वेस्ट जाएगा? इट विल वेस्ट लॉट ऑफ टाइम. इट विल वेस्ट लॉट ऑफ टाइम. तो इसलिए हम क्या करते हैं ना, एक टेम्पररी स्टोरेज, मतलब वो टेम्पररी स्टोरेज कहाँ पर होगा?
एक टेम्पररी स्टोरेज क्या करते हैं, मतलब परमिशन चेक नहीं करेंगे, हम एक ही बार परमिशन चेक करेंगे। तो दिस इज अ बफर। हम क्या करेंगे, हम फाइल को टच नहीं करेंगे, हम इस बफर में रीड राइट करेंगे। क्या करेंगे, अब मुझे 10,000 कैरेक्टर्स राइट करना है, किसमें, फाइल में। 10,000 कैरेक्टर्स या 10,000 बाइट्स राइट करना है, कहाँ पर, फाइल में। लेकिन मैं फाइल को डायरेक्ट टच नहीं करूँ, तो आई विल फर्स्ट राइट 10,000 कैरेक्टर्स इन दिस बफर, जहाँ पर मुझे परमिशन चेक कुछ नहीं करने की जरूरत। और फाइनली ये बफर का कंटेंट मैं कहाँ पर राइट करूँगा, इन वन शॉट। पहले मैं किधर रखूँगा सामान, एक टेम्पररी स्टोरेज, और बाद में फिर वो इन सिंगल शॉट, एक बार एंट्री हो गया, आपका परमिशन चेक हो गया, देन रेस्ट ऑफ द थिंग्स विल फाइल। सिमिलरली मुझे फाइल में से कुछ रीड करना है, तो वी विल नॉट डायरेक्टली रीड इन द एप्लीकेशन, वन शॉट में हम क्या करेंगे, बफर के अंदर पुल करेंगे डेटा, और इस बफर में से हम वन बाय वन पर परमिशन। तो व्हाट इज बफर, बफर इज अ टेम्पररी स्पेस, इट इज अ टेम्पररी where instead of writing or reading from file we temporarily store some data in that buffer। बफर में राइट करेंगे या रीड करना है तो बफर में से रीड करें, दिस इज टेम्पररी। इससे बहुत बड़ा परफॉर्मेंस सॉल्व होता है। अभी आपको दिखाऊंगा मैं, अगर मैं एक फाइल है 1 GB या 1 TB का फाइल है, एक फाइल का कंटेंट मैं दूसरे फाइल में कॉपी कर रहा हूँ, मैं दोनों का यूज करके आपको दिखाऊंगा, फाइल रीडर या जो भी आपका ट्रेडिशनल वे है, और बफर का यूज, विदाउट बफर एंड विद बफर, दोनों को आपको टाइम डिफरेंस बताऊंगा। इट इज ह्यूज डिफरेंस, बहुत ज़्यादा डिफरेंस। मैं आपको दोनों का परफॉर्मेंस आपको दिखाऊंगा। नाउ आई वॉन्ट टू रीड फ्रॉम द फाइल, नॉट डायरेक्टली हेल्प ऑफ बफर। तो मुझे क्या करना है, बफर में से रीड करना। अभी आप यहाँ पर वन सेकेंड रीड ऑपरेशन देखते हैं पहले, क्या, रीड ऑपरेशन, देन वी टॉक अबाउट द राइट आल्सो। तो आई हैव अ फाइल, आई हैव अ फाइल, ये आपका फाइल है, ये आपका जावा एप्लीकेशन, और यहाँ पर क्या है, 10,000 प्लस कैरेक्टर्स है, कैरेक्टर्स या बाइट। इस फाइल में क्या हो सकता है, एक तो कैरेक्टर्स होंगे या बाइट्स होंगे, क्या होगा, एक तो कैरेक्टर्स होंगे या बाइट्स होंगे। अब मुझे इस फाइल में से डायरेक्टली रीड करना है, तो मैं कौन सा क्लास यूज कर सकता हूँ। अब यहाँ पर कैरेक्टर, एज्यूम करो कैरेक्टर है, तो कैरेक्टर के लिए कौन सा क्लास यूज कर सकता हूँ मैं, रीड करना है, क्या करना है, रीड द क्लास फाइल। अगर इस फाइल के अंदर बाइट्स है, अगर इस फाइल के अंदर बाइट्स है तो कौन सा क्लास यूज करेंगे, फाइल इनपुट। अब इसमें क्या हो रहा है, आपको पता है कि हर एक टाइम हर एक कैरेक्टर रीड करो या हर एक बाइट यूज, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट। तो इसको हम क्या करते हैं ना, एक अलग से एक तरीका यूज करते हैं। तो यहाँ पर हम दूसरा अल्टरनेट वे ढूंढ रहे हैं। यहाँ पर ये मेरा फिर से फाइल है, और ये मेरा ऐप है। अब यहाँ पर कुछ डेटा है, अब हम क्या करेंगे, रीड करना है, हमें क्या करना है, रीड। तो पहले हम क्या करेंगे, डेटा कहाँ पर लेके आएंगे, वन शॉट में, बफर में। कहाँ पर लेके आएंगे, बफर में, और फिर बफर में से हम रीड करेंगे वन बाय वन। इज अ बेटर सोल्यूशन। ये क्या है, बफर, टेम्पररी मेमोरी और स्टोरेज। इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली रीड राइटिंग फ्रॉम द फाइल, पहले हम कहाँ पर लिखेंगे, बफर में, और बफर में से हम रीड करेंगे। अभी इस फाइल में आपको पता है दो टाइप के बफर होंगे। अभी कौन कौन से बफर होंगे, एक बफर हो सकता है जिसमें बस बाइट्स होंगे, और दूसरा बफर हो सकता है जिसमें कैरेक्टर्स हों। तो आप मुझे बताओ, मुझे बफर में से डेटा रीड करना है, कहाँ से, बफर में से इनटू जावा एप्लीकेशन, व्हाट इज द क्लास, यहाँ पर क्या है, बाइट्स, बाइट्स। बफर में से मुझे बाइट्स रीड करना है, बफर में से बाइट्स रीड करना है, व्हाट इज द क्लास, बफर्ड इनपुट स्ट्रीम। बफर में से कैरेक्टर रीड करना है, व्हाट इज द क्लास, बफर्ड रीडर, बफर्ड रीडर। सिमिलरली राइट ऑपरेशन के लिए हम करते हैं, ये रीड ऑपरेशन क्लियर है, ये देखो यहाँ पर क्लियर है पूरा, विदाउट बफर विद बफर, योर रीड ऑपरेशन।
कौन कौन से क्लासेस हैं? विदाउट बफर, फाइल रीडर, फाइल इनपुट स्ट्रीम। विद बफर, बफर्ड इनपुट स्ट्रीम, बफर्ड रीडर, बफर्ड रीडर, बफर्ड इनपुट स्ट्रीम एंड बफर्ड रीडर। ठीक है, अभी राइट ऑपरेशन देखते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द राइट ऑपरेशन। क्या करना है मुझे? अभी कौन सा ऑपरेशन है? राइट। मेरे पास एक फाइल है, यहाँ पर जावा एप्लीकेशन ले, राइट, वी हैव दिस जावा एप्लीकेशन, और यहाँ पर फाइल, योर फाइल। अब फाइल में से डेटा मुझे राइट करना है। कहाँ पर करना है? फाइल में। यहाँ पर डेटा राइट करना है। कहाँ से कहाँ? जावा एप्लीकेशन से फाइल में। तो मुझे बाइट्स राइट करना है। क्या करना है? बाइट्स राइट करना है। क्या करना है? बाइट्स। और दूसरा कैरेक्टर हो सकता है। बाइट्स राइट करने के लिए कौन सा क्लास? फाइल आउटपुट से, करेक्ट। फाइल आउटपुट। और कैरेक्टर राइट करने के लिए, करेक्ट। अभी आपको पता है कि इस सॉल्यूशन में क्या प्रॉब्लम है? बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है, बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। तो हम उससे क्या करते हैं? अभी 30 और एक सॉल्यूशन लेंगे हम, जहाँ पर मेरा जावा एप्लीकेशन, मैं जावा एप्लीकेशन में फाइल, जावा एप्लीकेशन या फाइल। अब मुझे क्या करना है? डायरेक्टली फाइल में नहीं राइट करना, बहुत टाइम जाता है उसमें। तो व्हाट आई विल डू, आई विल यूज अ टेम्प, और वी कैन हैव टू टाइप्स ऑफ बफर्स, वन बफर, अदर बफर। हम राइट करेंगे पहले बफर को, और बफर में से राइट करेंगे फाइल को। यहाँ पर भी बफर होगा, बफर में राइट करेंगे और बफर में से राइट करेंगे फाइल को। ठीक, पहले अब मुझे कहाँ पर राइट करना है? बफर में। लेकिन मेरे पास बफर में मेरा डेटा कौन सा था? बाइट्स या कैरेक्टर्स। अब मुझे राइट करना है क्या? बाइट्स। और मुझे राइट करना है कैरेक्टर। तो आप मुझे बताओ, बाइट्स राइट करना है कहाँ पर? बफर में। तो कौन सा क्लास है? बफर्ड इनपुट नहीं, आउटपुट। आप आउटपुट दे रहे हो, राइट? बफर्ड आउटपुट स्ट्रीम। और कैरेक्टर राइट करना है तो बफर्ड राइटर, राइट। और फाइल को राइट करने के लिए, फाइल को राइट करने के लिए, बाइट्स राइट करने के लिए कौन सा है? फाइल में बाइट राइट करना है, कौन सा क्लास है? फाइल आउटपुट। फाइल में डायरेक्टली राइट करना है तो फाइल, ये रहे। ओके, लेट्स गो बैक टू आवर डायग्राम, स्टार्ट किया था। तो वी हैव बाइट ओरिएंटेड स्ट्रीम्स, इनपुट स्ट्रीम एंड आउटपुट स्ट्रीम। मुझे फाइल में से क्या रीड करना है? बाइट्स रीड करना है डायरेक्टली फ्रॉम द फाइल। सो व्हाट इज द क्लास? फाइल इनपुट। नाउ आई वांट टू use the buffer instead of directly reading from the file, so I want to read from a buffer in terms of bytes. मुझे bytes read करना है, कहाँ से? bytes, बफर से। so what is the class? buffered input stream। अब मुझे फाइल में डेटा राइट करना है, कौन सा? बाइट। तो मैं डायरेक्टली फाइल में राइट करने वाला, तो मुझे कौन सा क्लास चाहिए? फाइल आउटपुट स्ट्रीम। अब मुझे इंस्टेड ऑफ राइटिंग टू अ फाइल, आई विल फर्स्ट राइट टू बफर एंड देन फ्रॉम बफर आई विल राइट टू द फाइल। तो कौन सा क्लास है? बफर्ड आउटपुट स्ट्रीम। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट रीडिंग एंड राइटिंग ऑपरेशन इन टर्म्स ऑफ कैरेक्टर। किसकी बात हो रही है? कैरेक्टर की बात हो रही है। तो मुझे कैरेक्टर्स राइट करना है या रीड करना है? कैरेक्टर मुझे रीड करना है डायरेक्टली फ्रॉम द फाइल। व्हाट इज द क्लास? फाइल रीडर। मुझे फाइल में से डायरेक्टली कैरेक्टर रीड नहीं करना, मुझे रीड करना है बफर में से। व्हाट इज द क्लास? बफर्ड रीडर। then I want to write to a file. What I want to write? I want to write characters. What I want to write? Characters directly to the file. What is the class? File
writer. I want to write to a buffer instead of writing to a file directly. What is the class? Buffer. Here. Okay, let's see that. Now, what we will do, we will read. First of all, what we are going to do, we will try to read the content. So, what are the classes? So, this is a file abc.txt, and this file I will have file handling used to create, update, delete name files using file handling can read write file. फाइल में से रीड करना राइट करना हाँ दिस द फाइल आई हैव. अब मुझे इस फाइल में से कुछ डेटा रीड करना है. ये जो भी लिखा है मैंने इसे रीड करना है. कैसे रीड करो? ये भी कैरेक्टर है. तो आई एम राइट डेमो 1 and that will be from file input stream. So what we are going to do, read from file. क्या करने वाले हम? read from file directly. read from file directly. तो हम बाइट्स के थ्रू यूज करेंगे. हम बाइट्स का भी यूज करेंगे, कैरेक्टर्स का भी यूज करेंगे. read from file in terms of bytes. terms of what is the file? abc dot file. now from this file I want तो bytes कैसे रीड करना है? इन टर्म्स ऑफ बाइट्स. कौन सी क्लास होगी? फाइल इनपुट स्ट्रीम. फाइल इनपुट स्ट्रीम न्यू फाइल इनपुट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे और इसको इनपुट देंगे फाइल. तो बोलेंगे इस पर्टिकुलर फाइल में से अगर फाइल गलत निकला तो आपने जो नाम दिया वो गलत हो गया तो वो एक्सेप्शन देगा फाइल नॉट फाउंड. क्या बोलेगा? फाइल इनपुट स्ट्रीम एक्सेप्शन दे देगा. कब देगा फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन? अगर आपने जो फाइल दी वो अगर उसे नहीं मिली तो एक्सेप्शन देगा फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन. नाउ लेट्स ट्राई टू रीड फ्रॉम द फाइल. कैसे रीड करेंगे? फाइल इनपुट. अभी आपको पता है कि उस फाइल में कितने सारे कैरेक्टर्स है? डू वी नो? हम यूज करेंगे एक सिंपल सा वाइल लूप. क्या यूज करेंगे? वाइल लूप. कब तक रीड करेंगे फाइल में से? जब तक एंड ऑफ फाइल नहीं होता. कब तक रीड करेंगे? विल कंटिन्यूसली रीड फ्रॉम द फाइल. विल कंटिन्यूसली रीड फ्रॉम द फाइल. कब तक? जब तक एंड ऑफ फाइल नहीं होता. और एंड ऑफ फाइल कैसे पता चलेगा? एंड ऑफ फाइल आप कंटिन्यूसली रीड करोगे तो वहां पर एक मेथड है रीड मेथड. सो दैट विल रिटर्न -1. जब एंड ऑफ फाइल आएगा दैट मेथड विल रिटर्न -1. तो हम क्या करेंगे? फाइल इनपुट स्ट्रीम डॉट रीड. अब ये मेथड क्या करती है? आपको एक एक कंटेंट देती है, एक एक बाइट देती है, कैरेक्टर बोल सकते हो. अब ये मेथड क्या करेगी? आपको रीड करके एक एक कैंडिडेट देगी, एक एक कंटेंट देगी. तो एट द लास्ट आई विल कंटिन्यूसली कॉल दिस मेथड रीड. कंटिन्यूसली कितने बार कॉल करेंगे? जब तक आपके पास वहां पर डेटा है. जैसे ही डेटा खत्म हो गया ये रीड मेथड क्या रिटर्न करेगा? आपको -1. यहां पर मैं लिखूंगा वाइल कंटेंट इज नॉट इक्वल टू -1. कब तक कंटिन्यू करेंगे हम? जब तक -1 नहीं आता तब तक ये लूप चलता रहेगा. कब तक चलेगा लूप? दिस लूप विल रन. दिस लूप विल रन कंटिन्यूसली. दिस लूप विल रन कंटिन्यूसली. कब तक? जब तक -1 नहीं आता. और मैं यहाँ पर लिखूंगा बस प्रिंट ln और कंटेंट प्रिंट कर दूंगा. प्रिंट द कंटेंट और उसको मैं टाइप कास्ट करूंगा. दैट्स इट. और फाइनली जब भी आप कोई काम खत्म करते हो इनपुट रीड या जो भी है तो आपको जो कनेक्शन आपने बनाया था दैट शुड बी क्लोज. सो फाइल इनपुट स्ट्रीम डॉट क्लोज मतलब आपने जो स्ट्रीम यूज करी, पाइप यूज करी, उसको बंद करना या क्लोज करना. दैट्स इट. लेट मी रन दिस. बहुत ज़्यादा कुछ नहीं लिखा हमने कोड. फाइल क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, फाइल इनपुट स्ट्रीम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, उसको इनपुट दिया फाइल, फिर एक वाइल लूप. अरे 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 क्या हुआ पता है? कैन एनीवन टेल मी व्हाई वी हैव गॉट दिस कनेक्ट लूप? ब्रेक नहीं. आपका कंटेंट अपडेट हो रहा है क्या?
पहली बार उसने रीड किया एफ, उसके बाद नेक्स्ट आपने रीड किया क्या उसको, आपको क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट कैरेक्टर ये कंटिन्यूसली रीड करना है, इसलिए वो इन्फिनिट में चला गया लूप। आर वी एबल टू गेट द कंटेंट? सिंपल। आप कोई भी फाइल का नाम दे सकते हैं। अब सेम चीज हम फाइल राइटर का भी यूज करके कर सकते हैं। तो डेमो 2 यहाँ पर सिंपल सा रीड फ्रॉम फाइल इन टर्म्स ऑफ कैरेक्टर्स। कौन सा क्लास यूज करना है आपको, ये देखो आप फाइल इनपुट स्ट्रीम को बस आप बना दो फाइल रीडर। क्या करना है आपको, फाइल रीडर, ये सारा सेम, नथिंग, एग्जैक्टली सेम थिंग। यहाँ पर अभी रीड होगा इन टर्म्स ऑफ कैरेक्टर्स, सेम लॉजिक। अब फाइल का नाम चेंज करना तो फाइल का नाम भी चेंज। अब लेट से मुझे डेमो इस पर्टिकुलर फाइल का नाम हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम है, ये मुझे प्रिंट करना है। क्या फाइल का नाम, src4। src के अंदर कौन सा फाइल है, वर्ल्ड डॉट, फाइल नॉट के अंदर व्हाट इज द पैकेज नेम, _1। src के अंदर पैकेज है, पैकेज आर यू एबल टू रीड द कंटेंट ऑफ। Now we have two more classes to read the content from file. What are the two more classes we have? Read from file, read from buffer, read from buffer terms of bytes। अभी रीड कहाँ से करेंगे हम, बफर में से, क्या रहेगा, बाइट्स। कौन सा क्लास रहेगा, अभी आप फाइल इनपुट स्ट्रीम का यूज कर रहे हो, फाइल इनपुट स्ट्रीम डायरेक्टली फ्रॉम द फाइल। तो अभी आपको क्या करना है, अलग से एक और लाइन बस ऐड करनी है। क्या राइट ऐड करनी है, बफर्ड इनपुट स्ट्रीम, बफर्ड इनपुट स्ट्रीम इक्वल टू न्यू बफर्ड इन, और यहाँ पर इसको इनपुट देना है फाइल इनपुट, दैट्स इट। और आप जो रीड राइट का ऑपरेशन कर रहे थे उसको कर दो आप यूजिंग बफर्ड इनपुट, दैट्स इट। फाइल क्लास ऑब्जेक्ट क्रिएटेड, फाइल इनपुट स्ट्रीम ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, फिर बफर्ड इनपुट स्ट्रीम ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, और फिर बफर्ड स्ट्रीम का यूज करना है टू रीड। फाइल इनपुट स्ट्रीम नहीं यूज करना है, यहाँ पर क्या यूज करना है, बफर्ड इनपुट डॉट रीड, बफर्ड इनपुट डॉट रीड, और ये आपका परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया रहेगा। पहले क्लोज करो बफर्ड इनपुट स्ट्रीम, फिर क्लोज करो फाइल। फाइल में ये करना है टच, फाइल में एक ही बार टच करोगे आप। पहले कहाँ पर रीड करोगे आप, पूरा एकदम बफर में, बफर में से रीड करेंगे और फिर बाद में एक बार, दैट्स इट। See here, we are able to read from the buffer also. Yes. Now next thing, what is the next thing we have to do? I want to read from buffer. I want to read from buffer in terms of कैरेक्टर्स। अभी कैरेक्टर्स के थ्रू हमें उसे रीड करना। सेम फाइल भी है, यहाँ पर फाइल रीडर के नीचे एक और लाइन लिखो, बफर्ड रीडर। क्या लिखना है, बफर्ड रीडर इक्वल टू न्यू बफर्ड रीडर, और इसको इनपुट दे दो फाइल, दैट्स इट। और अभी आप बफर्ड, पहले फाइल रीडर का यूज करते रीड करने के लिए, अभी बफर्ड रीडर यूज करो, दैट्स इट। बफर रीडर क्लोज, फाइल क्लोज, एंड दैट्स इट। सेम चीज यहाँ पर। So we have used 4 classes to read only, 2 in terms of bytes and 2 in terms of characters। यहाँ पर भी सेम, clear? Now I want to write, ये आपका read operation हो गया, this is something file read operation, file read operation।
व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू डू द फाइल राइट ऑपरेशन। यहाँ पर भी सिंपल है, फाइल राइट, और यहाँ पर डेमो1 हमें राइट करना है फाइल में इन टर्म्स ऑफ फाइल राइट इन टर्म्स ऑफ बाइट्स। फाइल में राइट करना है, इन क्या राइट करना है, इन टर्म्स ऑफ वन, डेमो1। I will create a file first of all and I will write to that particular file, और यहाँ पर एक नया फाइल बनाते हैं, let's say pqr.txt, we'll create the file.create new file। ठीक है, फाइल इज क्रिएटेड। नाउ आई वांट टू राइट समथिंग। अभी मैं क्या लिखूंगा, 1 से 100 तक का वैल्यू या जो भी वैल्यू आई कैन राइट दैट व्हाट आर द कंटेंट। तो राइट करने के लिए आपको यूज करना है फाइल आउटपुट स्ट्रीम इनपुट न्यू फाइल आउटपुट स्ट्रीम, और उसे इनपुट देना है फाइल। अभी क्या करना है, फाइल आउटपुट स्ट्रीम डॉट राइट। राइट आप सिंगल बाइट लिख सकते हो या सिंगल वैल्यू लिख सकते हो, लेकिन हम यूज करेंगे एक फॉर लूप, और इंट आई इक्वल टू 1 और यहाँ पर कुछ 100। तो हम नेट वैल्यूज लिखने वाला हूँ, मैं यहाँ पर वैल्यूज लिखूंगा आई, और यहाँ पर ऑपरेटिंग करूँगा, यू कैन डायरेक्टली राइट द आई वैल्यू। यहाँ पर वैल्यूज क्या राइट होगी, 1 to 100। फाइनली हम क्लोज करेंगे फाइल आउटपुट डॉट, और यहाँ पर फाइनली बोलेंगे राइट ऑपरेशन। राइट ऑपरेशन, लेट्स चेक आर वी एबल टू राइट दैट डॉट टी एक्स, और हमने कुछ कैरेक्टर्स लिखे हैं। ये 1 2 3 1 to 100 लिखा है, मतलब क्या लिखा है पता है आपको, ASCII वैल्यू, इस मतलब एक्चुअल कैरेक्टर्स लिखे। कैन डू दैट, और इसको हम फिर से लिखो, आप फिर से लिख सकते हो, फाइन। नाउ आई वांट टू राइट इन टर्म्स ऑफ, क्या करना है मुझे, कैरेक्टर्स राइट करना है, बट इन टर्म्स ऑफ सेम चीज। यहाँ पर क्या करना है, पहले तो फाइल एक बनाएंगे हम, फाइल नाम होगा XYZ.txt, और अब मुझे इस फाइल में राइट करना है। फाइल राइटर यूज करेंगे हम इस बार, फाइल राइटर, और इनपुट देंगे फाइल। नाउ यहाँ पर मुझे लिखना है कुछ स्ट्रिंग, लिख सकते हो जो भी लिखना है, फाइल राइटर डॉट राइट। यहाँ पर आप स्ट्रिंग भी दे सकते हो बिकॉज इट इज मेनली फोकस फॉर स्ट्रिंग ओनली। तो फाइल राइटर इज यूज टू राइट स्ट्रिंग्स फाइल, दैट्स इट। फाइनली आप फाइल राइटर को क्लोज कर सकते हो, फाइल राइटर डॉट, फाइल क्रिएट किया, फाइल राइटर ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, फाइल राइटर का मेथड कॉल किया राइट, स्ट्रिंग दे दिया, एंड बहुत सिंपल। फाइल राइट ऑपरेशन, that do we have the file xyz, yes, file writer is used to write things to the file। अभी यहाँ पर एक और चीज आपको याद रखना है, अभी आपको, अभी मैं कुछ यहाँ पर कुछ अलग कंटेंट दे दूँ, अभी लेट से we are appending the file। अब मुझे ये कंटेंट अपेंड होना है, अगर मैं अभी ऐसे ही प्रोग्राम चला दूँ, जो पहले का कंटेंट था सब कुछ ओवरराइट हो जाए। अभी इसको मैं चलाऊंगा तो क्या होगा, फिर से प्रोग्राम जो पहले फाइल राइट की है ना, वो पूरा का पूरा कंटेंट अभी चला जाएगा। जस्ट कॉपी दिस, और मैं इसको रन करता हूँ, पहला वाला कंटेंट गायब।
फिर से कंप्लीट रीराइट कर दिया उसने। पर देखो आप पेस्ट कर दिया। अब मुझे ऐसे नहीं होने देना, मुझे क्या करना है, अपेंड करना है। तो अपेंड के लिए यहाँ पर बोल सकते हो ट्रू। फाइल राइटर को एक और कंस्ट्रक्टर में इनपुट दो, फाइल दे दिया और उसको बोला कि इस फाइल के अंदर अपेंड करो। फाइल रीराइट मत करो, फाइल में क्या करो आप, अपेंड करो। अपेंड करना मतलब एडिंग द कंटेंट एट द एंड। अभी आप फाइल देखो, ओपन करोगे, लेट मी रन दिस। ये देखो, अभी फाइल पहले का एज इट इज था, उसने अलग कंटेंट अपेंड। दिस इज ऑल्सो वेरी मच यूज, ये आपको करना चाहिए। यहाँ पर आप लिखते हो ट्रू। ट्रू का मतलब होता है वी आर अपेंडिंग टू द, सिंपल। अभी हमने राइट ऑपरेशन किया यूजिंग डायरेक्ट फाइल। अभी हम यूज करेंगे बफर। क्या करेंगे, बफर। बफर में क्या करना है आपको, बस एक और फाइल तो ऑलरेडी आपका pqr.txt, जो तो फाइल ऑलरेडी। यहाँ पर बस आपको एक और चीज एक्स्ट्रा ऐड करनी है, बफर्ड आउटपुट स्ट्रीम। बफर्ड आउटपुट स्ट्रीम, गुड न्यू बफर्ड आउटपुट स्ट्रीम, और उसे इनपुट देना है फाइल आउटपुट। बहुत सिंपल है गाइज, यू माइट फील लॉट ऑफ कोड है, लेकिन ज़्यादा कोड है नहीं। बफर्ड आउटपुट स्ट्रीम डॉट राइट और बफर्ड स्ट्रीम, दैट्स इट। और यहाँ पर मैं अभी कुछ वैल्यूज लिख रहा हूँ 65 से लेके 100 तक। राइट ऑपरेशन, ये pqr डॉट फाइल चेक करोगे आप, और देखो कैरेक्टर्स को वी आर राइटिंग यूजिंग नाउ। वन लास्ट थिंग, now we will write to the buffer in terms of characters। तो राइट कर रहे हैं बफर को, फाइल ऑब्जेक्ट, फाइल इज ऑलरेडी देयर XYZ, और यहाँ पर हम यूज करेंगे फाइल राइटर। फाइल राइटर इक्वल फाइल राइटर फाइल और अपेंड, और यहाँ पर लिखना है बफर्ड राइटर, बफर्ड, और इसे इनपुट दो फाइल। यहाँ पर देंगे राइटिंग बफर्ड, आपका बफर्ड राइटर क्लोज। राइट ऑपरेशन, फाइल को जस्ट चेक करो, राइटिंग यूजिंग फिर। बस आपको ये क्लासेस कैसे यूज करना है बस देख लो। यहाँ पर ये दो क्लासेस और बाकी ऑब्जेक्ट रिलेशन एंड रिजर्वेशन का क्या है, क्या जाता है। पहले आप ये प्रैक्टिस करो, देन आई विल एक्सप्लेन इट। बहुत सिंपल है, यहाँ पर भी हार्डली टेक 10 मिनट्स, बट अब तो ये पहले आप प्रैक्टिस करो, एंड नेक्स्ट क्लास में हम इसको ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आउट, दैट यू विल गेट आउट मोर क्लैरिटी। पहले क्लासेस सारे इज नॉट दैट डिफिकल्ट गाइस, हो सकता है